آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ گتےدار کی لاپرواہی کے سبب نوبت دروازے سے پنچکونوا پل تک راستے کا تعمیری کام سست روی سے جاری، راہگیروں کو پریشانی کا سامنا، مگر متعلقہ انتظامیہ کی بے حسی برقرار۔ خواتین بچت گروپس کے ہاتھوں تیار کردہ اشیاء کو مارکیٹ دلانے NRLM کے تحت منعقد کی گئی سیلر اینڈ بائرز میٹ۔ 105 NGOs کی تیار کردہ اشیاء کی گئی نمائش۔ بائرز نے دیے 6,80,000 روپیوں کے آرڈرز۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپوزیشن جماعت کے ایک MP کی جانب سے نائب صدر جمہوریہ کی ناخوالی کرنے پر BJP کے عہدیداران و ورکرز ہوئے مشتعل۔ اپوزیشن کے متحدہ محاذ انڈیا کے خلاف شہر میں کیے گئے مظاہرے۔ اور سردیوں کے شباب پر آتے ہی اسٹریٹ ڈاگز برپانے لگے شہر میں قہر، راہگیروں اور وہیکل سواروں پہ کرنے لگے حملہ، شہریان پر خوف طاری، توجہ کا مطالبہ۔ خبریں تفصیل سے۔ نوبت دروازے سے گزر رہے راستے کا تعمیری کام نہایت سست روی سے جاری ہے، جس کی وجہ سے وہاں گاڑیاں سلپ ہونے لگی ہیں اور وہیکل سوار حادثات کی زد پر ہیں، مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے راستوں کی تعمیر کے لیے فراہم کردہ فنڈ سے سٹی چوک سے پنچکونوا قبرستان سے متصل نالے تک کا راستہ اور نالے پر سیمنٹ پل بنایا گیا، مگر فنڈز ختم ہو جانے کے بعد اس پل سے قلعہ ارک یعنی نوبت دروازے تک راستے کا تعمیری کام التوا میں پڑ گیا تھا۔ میونسپل انتظامیہ نے تاریخی وراثت قلعہ ارک کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اطراف سے راستوں کی تعمیر کا منصوبہ بنایا اور اس کام کے لیے G20 کے لیے موصولہ فنڈ سے بچی رقم سے اس راستے کا تعمیری کام شروع کروایا۔ قلعہ ارک کی ایک جانب پنچکونوا قبرستان اور دوسری جانب رہائشی مکانات تھے۔ میونسپل انتظامیہ نے قبرستان کمیٹی سے تو یہ جگہ حاصل کر لی اور دوسری طرف کے بیشتر مکانات بھی مسمار کر دیے گئے، مگر نوبت دروازے کے بیرونی حصے میں راستے کی تعمیری کام میں آئی نامعلوم رکاوٹ کے بعد کئی دنوں تک یہاں کا کام روک دیا گیا تھا، لیکن ساکنان اور یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو ہو رہی پریشانی کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے یہاں سڑک کا کام تو شروع کروا دیا، مگر یہ کام بھی نہایت ہی سست رفتار سے جاری ہے۔ کبھی چلتے چلتے اچانک مہینوں تعمیری کام بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سڑک حادثات کی آماج گاہ بن گئی ہے، مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی شکایت علاقے کے ساکنان نے MCN سے کرتے ہوئے میونسپل ایڈمنسٹریٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ متعلقہ افسران اور ٹھیکیداروں کو کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایات دیں۔ مہاراشٹرا اسٹیٹ رورل لائیولی ہوڈ مشن کے تحت خواتین بچت گروپس کے ہاتھوں تیار کردہ اشیاء کو مارکیٹ فراہم کروانے کی غرض سے ہوٹل رادھے میں بائرز اینڈ سیلرز میٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس سمیلن کا افتتاح ضلع پریشد کے ایڈیشنل CEO اشوک شیرسے کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ انہوں نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ خواتین بچت گروپس کے ہاتھوں تیار کردہ مقامی سطح پر، تعلقہ سطح، ضلع سطح اور ریاستی سطح پر مارکیٹ فراہم کروانے کی غرض سے منعقد کیے گئے اس گاہک تاجر سمیلن کے یقیناً مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ اس بائر اینڈ سیلر میٹ میں ہر تعلقے کے خواتین بچت گروپس کے ہاتھوں تیار کردہ اشیاء کے 20 سیمپلز رکھے گئے تھے، جس میں ضلع بھر سے خریداروں کو مدعو کیا گیا تھا، جن میں سپر مارکیٹ، ڈی مارٹ اور جیسے دیگر بڑے کاروباری اداروں کے ذمہ داران شریک ہوئے۔ اس موقع پر مہاراشٹر اسٹیٹ رورل لائیولی ہوڈ مشن کی جانب سے دستیاب اشیاء سے متعلق ایک معلوماتی کتابچہ بھی خریداروں کو دیا گیا۔ اس موقع پر RTC کے منگیش دیشمکھ، نابارڈ کے ڈاکٹر بیگ، شیو داس پاٹل، لکشمی کانت پاٹل، ماویم کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر راٹھوڑ، پیٹھن کے رام کرشن چودھری، حیدرآباد کے بیسک انڈسٹری کے ماروتی پاٹل سمیت دیگر بائرز بڑی تعداد میں شریک تھے۔ اس میٹ کو کامیاب بنانے میں اکاؤنٹس آفیسر یشونت شندے، ڈسٹرکٹ پروجیکٹ مینیجر سچیتا کھودکر، ڈسٹرکٹ مینیجر پردنیا دابھاڑے، آفس سپرنٹینڈنٹ پردیپ منڈے، سچن سونونے، ہریش پگارے اور دیگر متعلقہ افسران نے اہم رول ادا کیا۔ پروگرام کی نظامت سپریا ساڑونکے نے کی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپوزیشن جماعتوں کے ایک MP نے نائب صدر جمہوریہ کی نقل کی، جس سے
बीजेपी के ओहदेदारान व वर्कर्स शदीद मुश्तइल हो उठे और क्रांति चौक इलाके में उन्होंने अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया के खिलाफ सख्त मुजाहरा करते हुए जूते मारो आंदोलन किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों इंडिया अघाड़ी में शामिल तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लिमान कुणाल बनर्जी ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की नक्काली की, जिस पर भाजपा कारकुनान मुश्तइल हो उठे और आज उन कारकुनान और बीजेपी कायदीन ने शहर के क्रांति चौक पर शदीद मजम्मती मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया अघाड़ी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और भाजपाई खवातीन अघाड़ी की कारकुनान ने इंडिया अघाड़ी के कायदीन के तस्वीरी बैनर पर जूते मारो आंदोलन किया। इसी तरह भाजपा कारकुनान ने इंडिया अघाड़ी के लोगों को जूते मारो सालों को जैसे गैर महजबाना नारे भी लगाए। आमची एकच मागणी आहे की ज्या पवित्र संसदेच्या उपराष्ट्रपतींना हे जसं विडंबनात्मक असं जे व्हिडिओ काढत आहे, तर अशा लोकांना, अशा खासदारकी जी लोक आहेत अशा लोकांना त्यांची खासदारकी रद्द झाली पाहिजे आणि अशा पवित्र जे उपराष्ट्रपतींचं जे संसदेमध्ये त्यांनी अपमान केलेला आहे अशा लोकांना पदावर राहण्याचं बिलकुल काही कारण नाही आहे किंवा अधिकार नाही आहे। संसदेच्या उपराष्ट्रपतींचा अपमान तृणमूल काँग्रेसची बॅनर्जी आणि राहुल गांधी हे दोघं ज्या पद्धतीने केले हा संपूर्ण भारताचा, हिंदुस्थानचा अपमान आहे। त्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी संभाजीनगर आज रस्त्यावरती उतरले या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी। सर्दियों का मौसम शबाब पर आते ही शहर में आवारा और खूंखार कुत्तों का कहर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से शहरियान पर खौफतारी है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। एनिमल प्रिवेंशन एक्ट के सबब आवारा और खूंखार कुत्तों को अब जान से मारा नहीं जा सकता, जिसके सबब शहर में स्ट्रीट डॉग्स की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है। गो कि उनकी बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए एएमसी इंतज़ामिया हर साल लाखों रुपये उनके फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन पर खर्च कर रहा है, मगर ऑपरेशन के बाद पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स को जब फिर से उस इलाके में छोड़ दिया जाता है जहां से उन्हें पकड़ा गया था, मगर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करने के बावजूद खूंखार कुत्तों की आबादी में इजाफा ही हो रहा है, जिससे मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी शक के घेरे में है। दूसरे ये कि ये आवारा और खूंखार कुत्ते शहर की हर गली, हर चौराहे और हर रास्ते पर गैंग की शक्ल में जमा हो जाते हैं और राहगीरों व व्हीकल सवारों पर हमलावर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग सख्त-गजीदगी का शिकार होने लगे हैं। अहम बात तो यह है कि सख्त-गजीदगी के शिकार मरीजों को दिए जाने वाले ARV का अक्सर शॉर्टेज रहता है। मरीजों को बाहर से महंगे दामों पर ये वैक्सीन खरीद कर अपना इलाज करवाना पड़ता है। कबाड़ीपुरा इलाके के साकिनान ने MCN न्यूज़ से शिकायत की है कि चौराहे पर एक कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद से वो खूंखार हो गई है और उसके करीब से गुजरने वालों को भंभोड़ने लगी है और अब तक कई अफराद उसके शिकार हो चुके हैं। इस खूंखार फीमेल डॉग के हमलों से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। MLA जितेंद्र आहाड़ की जानिब से बीजेपी के आइंदा इंतखाबात तने तनहा लड़ने से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान MLA संजय शिरसाट ने कहा कि आइंदा इंतखाबात बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप मिलकर ही लढेंगे। राजकारणामध्ये पूर्वी काही प्रमाणामध्ये एखादा दोन विदूषक असायचे, परंतु आता राजकारणामध्ये भविष्य पाहणारे जास्त झालेले आहेत। भाजपच्या झालेल्या बैठकीचं इतिवृत्त यांच्या हाती पडतंय आणि हे त्या बैठकीला उपस्थित होते या आविर्भावात बोलतायत। आम्हाला काय करायचं किंवा भाजपची काय भूमिका घेतली पाहिजे, संघाने काय भूमिका घेतली पाहिजे याबद्दल या लोकांनी चिंता करू नये। आम्हाला निवडणूक कशी लढायची याची पूर्ण जाण आम्हाला आहे। तुमची अनेक वेळेला पक्षाशी केलेली किंवा नेत्यांशी केलेली गद्दारी हा महाराष्ट्र विसरलेला नाही। यशवंतराव चव्हाणापासून तर वसंतदादापर्यंत ज्या पक्षाच्या नेत्यांनी गद्दारी केली त्यांनी आम्हाला बौद्धिक त्यांनी शिकवू नये। आम्हाला निवडणुका कशा जिंकायच्यात किंवा कशा लढायच्यात हा निवडणुकीचा विषय भाजप आणि आम्ही मिळून ठरवू, त्याबद्दल या लोकांनी चिंता करायचं काहीच कारण नाही। अहो यांनी भविष्य वर्तवलं म्हणजे होतंय का? आम्ही भाजप आणि आम्ही सर्व
एकत्रितपणे निवडणूक लढवणार आहोत. त्यात कुठेही लोकसभा पण आणि विधानसभा हे दोन्ही एकत्रितपणे लढल्या जातील. युती ही भक्कमपणे उभी आहे आणि या युतीचा परिणाम महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला दिसून सुद्धा येईल. कुठेही कान नका लावत जाऊ ना. मंत्र्यामध्ये काय चर्चा झाली, मंत्री काय बोलले, तुम्ही का कान तिकडं हे लावता? तुमच्या पक्षाचं अस्तित्व संपलेलं आहे, त्याच्याकडे लक्ष द्या. उभाटा गट असेल किंवा शरद पवार गट असेल, यांच्या पक्षाच्या अस्तित्वापेक्षा इतरांच्या घरामध्ये डोकवण्यात जास्त इंटरेस्ट आहे. म्हणून हे दिवस आज त्यांना पाहायला मिळत आहेत. घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर राठौड़ का अचानक परभनी मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर कर दिया गया है. उनकी जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद के नए डीन की हैसियत से डॉक्टर शिवाजी सुकरे का तकर्रुर किया गया है. डॉक्टर सुकरे ने अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घाटी के डीन के बतौर गुज़िश्ता रोज अचानक डॉक्टर शिवाजी सुकरे को मुकर्रर कर दिया गया और घाटी के डीन डॉक्टर संजय राठौड़ का महज 1 साल के खिदमत के दौरानिये के बाद ही तबादला करके उन्हें परभनी भिजवा दिया गया है. डॉक्टर सुकरे अब तक परभनी के गवर्नमेंट अस्पताल के डीन थे. उन्हीं की जगह डॉक्टर संजय राठौड़ को परभनी के अस्पताल का डीन मुकर्रर किया गया है. डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने आज घाटी पहुंचकर अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया है. 20 डिसेंबर 2023 रोजी मी या ठिकाणी शासनानं दिलेल्या आदेशानुसार अधिष्ठाता म्हणून रुजू झालेलो आहे. कालपासूनच या ठिकाणी मी कामाला सुरुवात केलेली आहे. आपल्याला माहीतच आहे की मी या ठिकाणी मागच्या 20 वर्षापासून वैद्यकीय उपअधीक्षक, वैद्यकीय अधीक्षक, डेप्युटी डीन आणि काही काळामध्ये ज्यावेळेस संबंधित अधिष्ठाता सुट्टीवर असायचे त्या काळात अधिष्ठाता म्हणून सुद्धा काम केलेलं आहे. तर त्यामुळं या ठिकाणी महाविद्यालय असेल, रुग्णालय असेल, त्यामध्ये संबंधित जे हे आहेत प्रश्न आहेत तर ते मला बऱ्यापैकी त्याची जाणीव आहे. या ठिकाणी येणारा रुग्ण हा अत्यंत गोरगरीब घरातून आलेला असतो. त्याला त्याची आर्थिक परिस्थिती नसती की तो खाजगी रुग्णालयामध्ये जाऊन काही उपचार घेऊ शकेल. तर अशा सर्व रुग्णांसाठी माझं प्राधान्य असेल की त्या सर्व रुग्णांना चांगल्या सुविधा या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. कोणत्याही रुग्णाला गोळ्या, औषध, अँटीबायोटिकचे इंजेक्शन असतील किंवा कुठलंही साहित्य हे बाहेरून आणावं लागणार नाही. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की शोहरत और नेक नामी को बढ़ावा देने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की गईं. इन ख्यालात का इजहार वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने एक तकरीब के दौरान किया. जिला जालना के इदारे मत्स्योदरी शिक्षण संस्था और आनंद फाउंडेशन की जानिब से जालना के अंकुशराव टोपे कॉलेज में MGM यूनिवर्सिटी के साबिक VC डॉक्टर सदीर गवाहने के हाथों डॉक्टर प्रमोद येवले का इस्तकबाल किया गया. इस मौके पर डॉक्टर येवले की खिदमत और कारकर्दगी की सताइश की गई. इस तकरीब की सदारत साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर रामलाल अग्रवाल ने की. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले, जो इस माह 31 दिसंबर को हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हो रहे हैं, उन्होंने इस इस्तकबालिये में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो अपने खिदमत के दौरानिये में इंतज़ामी नज़्म ज़ब्त और लोगों में यूनिवर्सिटी के तय एतमाद की बहाली में कामयाब रहे हैं और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को मुल्क भर में एक बेहतर व ऊंचा मकाम दिलवाने की मुखलिसाना कोशिश की है, जिस पर उन्हें खुशी व इत्मीनान है. इस तकरीब में मत्स्योदरी शिक्षण संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर BR गायकवाड़, आनंद फाउंडेशन के सदर डॉक्टर शिवाजी मदन और ज्योति येवले भी मौजूद थे. विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ बाजार सावंगी के मज़ाफ़ात झरी पहुंचा तो वहां अवाम ने उसका पुरजोर इस्तकबाल किया. हुकूमत की जानिब से आम जनता के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात और मंसूबों की जानकारी दूर दराज देहातों और मज़ाफ़ात के अवाम तक भी पहुँचाई जा सके, इस मकसद का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत की हिदायत पर मुल्क भर ये यात्रा निकाली जा रही है. इस संकल्प यात्रा का रथ बाजार सावंगी के मज़ाफ़ात झरी पहुँचा तो इस रथ में शामिल अफराद का यहाँ इस्तकबाल किया गया. इस मौके पर शोबे सेहत की जानिब से गाँव के कमोबेश 40 अफराद की शुगर व BP की जाँच भी की गई और उन्हें मुफ्त मशवरे दिए गए. दरियासना रथ के जरिए गाँव वालों को हुकूमत के प्रोग्रामों, स्कीमों और मंसूबों की जानकारी देते हुए साकिनान से अपील की गई कि वो इन मंसूबों व फलाही स्कीमात से इस्तेफादा करें. इस मौके पर गाँव के सरपंच करण सिंह राजपूत, पंचायत समिति खुलदाबाद के BDO प्रकाश नाइक, जिला परिषद के साबिक नायब सदर LG गायकवाड़, ग्राम सेवक सचिन बंसोड़े, सदर मुदर्रिस राजपूत और गाँव के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे.
एक बार फिर शहर में ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत आज रेलवे स्टेशन इलाके में कार्रवाई की गई और 5 दुकानदारों से 6,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह 6 किलो ममनुआ कैरी बैग्स भी जब्त किए गए। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नागरी मित्र पथक और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुश्तरका तौर पर रेलवे स्टेशन इलाके में अंजाम दी है और अचानक यहाँ के रेस्तरां और दीगर कारोबारी इदारों पर जांच शुरू की गई और ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक इस स्क्वाड ने होटल्स, दूध डेयरी और दीगर दुकानों समेत 43 मकामात पर जांच की है। इस दौरान 5 दुकानों में ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल देखा गया, जिस पर मुतल्लिका दुकानदारों से 6,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया और 6 किलो कैरी बैग्स जब्त की गयी। ये कार्रवाई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इलाकाई अफसर कोसे मैडम, लेडी SI मलके, नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव समेत पथक में शामिल दीगर अफसरान और मुलाजिमीन ने अंजाम दी है। ग्राम पंचायत मुलाजमीन की जारी रियासतगीर हड़ताल में जिला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव की ग्राम पंचायतों के मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया और पंचायत समिति दफ्तर पर जोरदार एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आया है कि 3 रोज से जारी इस रियासतगीर हड़ताल में ताल्लुके के कई ग्राम पंचायत के मुलाजिमीन की जानिब से अमली तौर पर सरगर्म हिस्सा लेते हुए यहाँ पंचायत समिति के दफ्तर पर एहतजाज दर्ज करवाया गया और कमोबेश 158 मुलाजिमीन ने काम बंद एहतजाज शुरू कर रखा था। इन मुलाजिमीन की संगठना महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कामगार सेना से मुल्हक गाँव की सतह पर ग्राम पंचायत दफातर में बरसरकार मुलाजिमीन को नगर परिषद, नगर पालिका व जिला परिषद मुलाजिमीन के मसावी शरह तनख्वाह देने, पेंशन मंजूरी, GP फंड, प्रोविडेंट फंड लागू करने जैसे कई मतालिबात की मंजूरी के लिए इस रियासतगीर हड़ताल का एहतमाम किया गया है। इस मुजाहरे व एहतजाज के मौके पर मुलाजमीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। ग्रामपंचायत कोलंबी येथे वसुली कारकून या पदावर आहे। जवळपास 4 वर्षापासून जॉईन आहे। सुरुवातीला 6,000 पगार होता। आता 2020 पासून 11,625 रुपये झालेला आहे। आमच्या काही मागण्या होत्या म्हणून आम्ही 3 दिवसापासून संपावर होतो आणि दुसरं म्हणजे आमच्या कर्मचाऱ्याचं इन्शुरन्स करणे ही आवश्यकता आहे। यामुळे आम्ही तो उपोषणाला बसलेलो आहोत। तरी आमच्या जिल्हा परिषदच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतन श्रेणी मंजूर करणे व ग्रामपंचायत कर्मचारी निवृत्ती वेतन लागू करणे व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना उपदान लागू करणे व भविष्य निर्वाह निधी रक्कम EPFच्या खात्यामध्ये जमा करणे व सुधारित किमान 5वा वेतन लागू करण्याबाबत व वसुलीची 8G रद्द करणे व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या आकृती बंधात सुधारणा करणे व जिल्हा परिषद सेवेत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून रिक्त पदाच्या 10% प्रमाणे भरती करणे व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतन 10 ऑगस्ट 2020 पासून जे थकीत असलेले तात्काळ वेतन अदा करण्याबाबत। जिला परिषद के शोबे तामीरात के एक डिप्टी इंजीनियर ने एक सहाफ़ी के साथ बदसलूकी की और उसे धमकियां दी, जिसके खिलाफ सहाफ़ियों की जानिब से DSP रूरल और बिड़किन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताया जाता है कि अपने चंद सियासी पुष्टपनाहों के बल पर मज़कूरा डिप्टी इंजीनियर समाजी कारकुनान और सहाफ़ियों से बदसलूकी का बर्ताव करता है और सरकारी काम में रखना अंदाजी के झूठे इल्जाम आयद करके मामले दर्ज करवाने की धमकियां देने में माहिर है। जिला परिषद शोबे तामीरात के इस डिप्टी इंजीनियर संभाजी असोले के बर्ताव व गलत तर्जकार पर हफ्तावार अखबार एकंत में 12 दिसंबर को तफसील शाये की गई तो संभाजी असोले गुस्से से मुश्तइल हो गया और उसने चीतेगांव इलाके के एक मारूफ कारकुन के साथ एक ढाबे पर बैठकर अखबार के एडिटर से गाली गलौज की और धमकी दी कि जिस तरह हाल ही में बीड़कर नामी RTI कारकुन को उसने दफ्तर बुलाकर गालियां देकर उल्टे उसी पर मामला दर्ज करवा दिया था, इसी तरह का सुलूक तेरे साथ भी करके तुझे लंबा कर दूंगा। इस धमकी आमेज फोन की तफसील सहाफ़ी सुनील खराबे ने पत्रकार संगठना के ओहदेदारान के गोशगुजार की और फिर संगठना की जानिब से पत्रकारों ने संभाजी असोले के खिलाफ तहरीरी शिकायत दाखिल करवाई और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ाती कानून के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है और इंतबाह दिया है कि अगर किसी सियासी व दीगर दबाव के चलते कार्रवाई में टाल मटोल की गई तो सुनील खराबे 6 जनवरी यानी दरपन दिन से जिला परिषद के दफ्तर के सामने बेमियादी भूख हड़ताल करेंगे।
बाजार सावंगी के जिला परिषद सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में सरपरस्तों के लिए स्पोर्ट्स मुकाबले रखे गए, जिसमें सरपरस्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन मुकाबलों का इफ्तिताह मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन रमेश नलावड़े के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि जिला परिषद स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की हमजहत तरक्की के लिए उनके सरपरस्तों को अपने बच्चों को पाबंदी के साथ स्कूल्स भिजवाने की तरगीब दी जा रही है। साथ ही सरपरस्तों को भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए उनके लिए भी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अमल में लाई जा रही हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ बाजार सावंगी में मौजूद ज़िला परिषद सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में सरपरस्तों के लिए कबड्डी, लीमू चमचा दौड़, 100 मीटर दौड़, म्यूज़िकल चेयर, रस्सी खींच, गोला फेंक और दीगर कई दिलचस्प मुकाबले रखे गए। इन मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। स्पोर्ट्स के इन मुकाबलों को कामयाब बनाने में स्कूल की सदर मुअल्लिमा मंगला तिड़ोने, सेंटर चीफ अशोक महालकर, हेडमास्टर हरिभाऊ दहीफड़, सैयद लाल अपाराव और दीगर ने अहम रोल अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुत्तेदार की लापरवाही के सबब नौबत दरवाजे से पंचकुआ पुल तक रास्ते का तामीरी काम सुस्त रवि से जारी, राहगीरों को परेशानी का सामना, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। खवातीन बचत ग्रुप्स के हाथों तैयार करदा अशिया को मार्केट दिलाने NRLM के तहत मुनक़िद की गई सेलर एंड बायर्स मीट। 105 NGOs की तैयार करदा अशिया की गई नुमाइश। बायर्स ने दिए 6,80,000 रुपयों के ऑर्डर्स। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन जमात के एक MP की जानिब से नायब सदर जमहूरिया की नखाली करने पर BJP के ओहदेदारान व वर्कर्स हुए मुश्तइल। अपोजिशन के मुत्तहदा महाज इंडिया के खिलाफ शहर में किए गए मज़ाहरे। और सर्दियों के शबाब पर आते ही स्ट्रीट डॉग्स बरपाने लगे शहर में कहर, राहगीरों और व्हीकल सवारों पे करने लगे हमला। शहरियान पर खौफ तारी, तवज्जो का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।